Hi friends, in this session we'll start with LCAO method. LCAO method means linear combination of atomic orbital method. In previous session we already discussed about how the overlapping takes place, and after overlapping we'll discuss a huge topic that is called hybridization. So after completion of hybridization, two topics are left in this chapter. That is, first is LCAO, and there is one more huge topic that is called as MO diagrams, that is molecular orbital diagrams. So this is a precursor of molecular orbital diagram, that is LCAO method, that is linear combination of atomic orbital. Now molecular orbital are formed by combination of atomic orbital by the approximate method known linear combination of atomic orbital. So basically MO means molecular orbitals. Molecular orbital form कैसे होते हैं? When two atomic orbital comes together you get molecular orbital. Now ये सारी चीज क्यों पढ़नी है? Just because molecule क्यों बनता है, molecule कैसे बनता है. So one atom, another atom comes together and you get the molecule. So atom नजदीक आते हैं? No, atom के atomic orbital नजदीक आते हैं. So let's once again take a very basic example. One hydrogen atom, another hydrogen atom. तो H2 molecule बनता है. H2 molecule बनता कैसे है? सबसे पहले तो हाइड्रोजन की atomic orbital and दूसरे हाइड्रोजन की atomic orbital when comes together overlapping takes place and overlapping से बनती है molecular orbital और वहां पे H2 molecule form होता है. So आज हमें वही discussion करना है. According to this theory, the combinations of atomic orbital takes place by the addition and subtraction. There are two ways. One atomic orbital, another atomic orbital overlapping में addition होगा तो bonding molecular orbital बनेगा, and subtraction होगा तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा. सो वेव फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, द MO फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर नोन एज BMO. BMO का मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. सो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अंडरगोज एडिशन, दैट इज कॉल्ड एज BMO. By subtraction of atomic orbital are called anti-bonding molecular orbital, that is ABMO. So one atomic orbital, another atomic orbital, इन दोनों के बीच में subtraction होगा तो आपको क्या मिलेगा? Anti-bonding molecular orbital. So जो पैराग्राफ आपने पढ़ा, इन शॉर्ट कट शॉर्ट बताना है तो क्या? One atomic orbital of atom, another atomic orbital of atom converted into two MOs. MOs का मतलब होगा molecular orbitals. So जब दो atomic orbital combine होंगे तो दो MO बनेंगे. One is BMO, that is bonding molecular orbital, that is always denoted by sigma and pi, and another is anti-bonding molecular orbital, that is called as sigma star and pi star. अगर वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के लैंग्वेज में अगर आपको पढ़ना है तो फर्स्ट एटम का वेव होगा साई ए, दैट इज द वेव फंक्शन ऑफ एटम नंबर 1, प्लस साई बी. साई बी का मतलब होगा वेव फंक्शन ऑफ सेकेंड एटम. नाउ इफ दिस टू अंडरगोज एडिशन देन साई ए प्लस साई बी, जो आपको अभी ऊपर पढ़ाया है मैंने, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में एडिशन होगा तो यू गेट BMO. This is called B bonding molecular orbital. While in case of subtraction होगा, that is psi A minus psi B, that is called as ABMO. Now जो BMO होगा वो BMO requires very less amount of energy. They are, आप बोल सकते हो, they are generally on ground state और level नीचे की तरफ होगा BMO का. While in case of ABMO having more repulsion due to this acquire a somewhat higher energy level, तो वो always ऊपर की तरफ होगा. BMO always on ground state. We cannot use the word excited state, but higher energy level पे होगा या lower energy level पे होगा. इसको कभी भी हम डिनोट नहीं करेंगे स्ट्रिक्ट मार्क्स से. दिस इज अ नॉर्मल साइन सिग्मा एंड पाई.
while in case anti-bonding molecular orbital always denoted by sigma star and pi star. So ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसका सिंप्लीफिकेशंस यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझा दिया है. अब और आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पैराग्राफ. The electron density in BMO is located between this nuclei of the bonded atom. So the repulsion between nuclei is really very low. So BMO having less repulsion, मैंने अभी आपको बताया, therefore BMO is always possess lower level energy. अभी हमने पिक्चरल डायग्राम में भी देखा कि that is BMO always on lower energy level. Opposite to that, ABMO having more electron density located away from each other. Due to this, they suffer from a more electron repulsion, and while so the ABMO possesses the higher energy as compared to this BMO. So ABMO are always on a somewhat higher stage. So ABMO is always denoted by the asterisk mark. यहाँ पे clearly बताया हुआ. There are two types. There is sigma, pi. वन डेल्टा इज ऑल्सो देयर, बट डेल्टा हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, तो वी आर ओनली कंस्ट्रक्शन अबाउट सिग्मा एंड पाई. तो सिग्मा एंड पाई के ऊपर अगर एस्ट्रिक मार्क है तो आपको समझ जाना है कि वो एबीएमओ है. एबीएमओ का मतलब क्या होगा? मोर रिपल्जन बिटवीन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अगर एस्ट्रिक मार्क नहीं है तो वो कौन सा होगा? नॉर्मल. दैट इज कॉल्ड इज बीएमओ, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये सब हम क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज नेक्स्ट हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हमें दोनों के दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों पता होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल अबाउट योर LCAO मेथड. नेक्स्ट पार्ट, conditions for the combination of atomic orbital. The combination of atomic orbital form MOs takes place only if the following conditions are satisfied. Means 2 MO comes together and you get MOs. MOs means molecular orbitals. तो वो कौन कब कैसे जनरेट होगा, इसके लिए कंडीशन है. फर्स्ट, the combination of AOs must have a same or nearly the same energy. मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बन सकता है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, बट दोनों के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो सेम या फिर नियरली होनी चाहिए. मीन्स s ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, sp के साथ कर सकता है, बट sd या f के साथ नहीं कर सकता. जनरली s के साथ, pp के साथ ही करेगा, बट sp के साथ भी कर सकता है. मीन्स नियरली सेम एनर्जी. The combination of AO must have the same symmetry about the molecular axis. Same symmetry का मतलब px px के साथ, py py के साथ, pz pz के साथ. The combination of AO must overlap to the maximum extent. मैक्सिमम एक्सटेंट तक हमने पहले ही बनाया था कि जितना एक्सटेंशन ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. तो ओवरलैपिंग जो होगा वो हाईएस्ट और मैक्सिमम एक्सटेंट तक किया होगा, तभी जाके एमओ फिजिबल है. कौन कौन सी 3 कंडीशन देखिए. सबसे पहली कंडीशन, AOs मस्ट हैव द सेम और नियरली एनर्जी. मीन्स SS के साथ जुड़ सकता है, PP के साथ जुड़ सकता है, SP के साथ जुड़ सकता है, बट SB एंड F के साथ नहीं जुड़ सकता है. AOs must have the same symmetry, means px px के साथ, py py के साथ, pz pz के साथ overlapping करेगा. The combination of AOs must overlap by the maximum extent. Maximum extent तक overlapping हुई होनी चाहिए. Now next point, types of molecular orbitals. Types of molecular orbital are 2 type, BMO and ABMO. So उसके लिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं types of MOs. The MOs of diatomic molecule are designated by sigma, pi, delta. Delta अभी हमारे सिलेबस में नहीं है तो डेल्टा के ऊपर फोकस मत कीजिएगा. सिग्मा एंड पाई वी हैव. The sigma MOs are symmetrical about the bond axis while pi MO are the not symmetrical. Once again दूसरा, see many times स्कूल के एग्जाम में पूछेंगे give the difference, 2 difference of BMO and ABMO. तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, BMO जो होगा वो लोअर एनर्जी पे और लेस रिपल्जन की वजह से फॉर्म्ड होगा, जब ABMO जो होगा वो मोर रिपल्जन की वजह से
एंड हायर एनर्जी लेवल पे फॉर्म होगा। सेकेंड, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड पाई इन केस ऑफ BMO एंड सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार इन केस ऑफ ABMO। थर्ड पॉइंट, BMOs जो होंगे वो सिमेट्रिकल हो गए अबाउट द बॉन्ड एक्सिस, वाले ABMO जो होंगे, जो पाई हो गए MOs आर नॉट सिमेट्रिकल। सिग्मा वाले जितने भी होंगे वो सिमेट्रिकल, पाई वाले नॉट सिमेट्रिकल। लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 1s ऑर्बिटल प्रोड्यूस 2 MOs। जैसे मैंने अभी आप लोगों को पिक्चर और डायग्राम में बताया था, 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स यू 2 MO। कौन कौन से? One is BMO means bonding orbital and another is ABMO anti-bonding molecular orbital। देखिए, one is BMO of sigma s and ABMO of sigma star 1s। सिग्मा स्टार का मतलब ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, सिग्मा 1s का मतलब ये नॉर्मल मीन्स बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। लाइकवाइज अगर दो 2s कंबाइंड एंड ओवरलैप होगा तो क्या होगा? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। लाइकवाइज pz ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो आपको क्या मिलेगी? सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। बट पाई किसके केस में हो गए? 2px एंड 2py के केस में पाई बनेगा। तो देखिए, 2px ऑर्बिटल आर 2 सिग्मा MOs, that is pi 2px and pi star 2px, and 2py having 2 MOs, pi 2py and pi star 2py. So px and py are responsible for the pi formation, while s orbital, that is ss 1s 1s 2s 2s are formation for the sigma orbital. While in case of z is also form 2pz, sigma 2pz and sigma star 2pz. So this is all about your different kinds of MOs. अब ये MO की कुछ एनर्जी लेवल भी होगी, मीन्स जिससे आप मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन फिलिंग अप कैसे करोगे? सो इलेक्ट्रॉन फिलिंग अप के लिए एनर्जीज ऑफ MOs। एनर्जीज ऑफ MOs मीन्स वंस अगेन वी हैव टू फॉलो ऑफ-बाउफ रूल। लोअर एनर्जी लेवल सबसे पहले फिल होगा, देन हायर एनर्जी लेवल। सो हमें लिथियम से लेके फ्लोरीन तक सभी के एमओ डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो तो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट वो कौन से सीक्वेंस में होंगे वो सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। पहली सीक्वेंस है फॉर लिथियम से लेके नाइट्रोजन तक की, मीन्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन के लिए ये ऑर्डर है, वाइल इन केस ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन के लिए ये ऑर्डर क्या है? तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py सिग्मा 2pz। See here in case no regular Aufbau rule is applicable। Aufbau rule था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, वो रूल यहाँ पे नहीं लगेगा, बट उसका जो कंसेप्ट है लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट फिलअप देन हायर एनर्जी लेवल, तो वही हिसाब से यहाँ पे हम फिलअप करेंगे। दैट इज सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, while sigma 1s is BMO, sigma star is ABMO। once again 2s के लिए sigma 2s sigma star 2s, pi 2px equivalent to pi 2py, then sigma 2pz, then pi star 2px equivalent to pi star 2py, then sigma star 2pz। अब देखिए मैंने जहां पे बोल्ड किया है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन इस केस के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने बोल्ड एंड अंडरलाइन की हुई है। अब देखिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, उसका ऑर्डर क्या है? 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब सिग्मा 2pz पहले फिल होता है, देन पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py। यहाँ पे उल्टा हो गया है इसका। रीजन क्या है? द रीजन इज टिल नाइट्रोजन p ऑर्बिटल जो था वो हाफ फिल्ड था, मीन सिंगली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था। जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट होगा, पेयरिंग स्टार्ट होने की वजह से सिग्मा 2pz जो है वो पहले फिलअप होगा। एंड 2pz z एक्सिस कहाँ पे है? अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, एंड ड्यू टू दिस एक्वायर लेस रिपल्जन, देन पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py। इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है? लिथियम से नाइट्रोजन के केस के अंदर सिग्मा 2pz बाद में फिल होता है,
बट जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट होगा सिग्मा 2pz पहले फिल होगा, पाई 2px पाई 2py बाद में फिल होगा, देन पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz. सो दिस ऑर्डर यू हैव टू रिमेंबर. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर हम लोग एक एक करके सारे के सारे एटम का एमओ डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं. अब सिंपल किसी को लगे कि सर हाइड्रोजन का एमओ डायग्राम फिजिबल है, हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है. यस, हाइड्रोजन का भी एमओ डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो. लेट्स सी कैसे होगा. सो दिस इज द डायग्राम फॉर हाइड्रोजन. जब भी हम एमओ डायग्राम ड्रॉ करेंगे वी हैव टू पुट इट इनटू दिस 1, 2 and 3 कॉलम. कॉलम नंबर 1 फर्स्ट हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, मींस आप यहां पे लिखोगे AO ऑफ H. हियर इन केस AO ऑफ अनदर H मींस H. एंड ये दोनों जब भी कंबाइंड होंगे यू गेट सेंटर में हमारा एमओ डायग्राम ड्रॉ होगा, दैट इज H2. देखिए ये एक हाइड्रोजन एटम, दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम, दोनों कंबाइन होके मिल गया H2 मॉलिक्यूल. one atomic orbital, another atomic orbital, overlap and you get MO means molecular orbital of H2. अब देखिए हाइड्रोजन 1s1 only one electron is there, तो यहाँ पे एनर्जी लेवल पे क्या होगा, यहाँ पे 1s का एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1s का एक इलेक्ट्रॉन है. अब सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कम्स टुगेदर यू गेट 2 MO. कौन कौन सी, तो सबसे पहले देखिए ये जो नीचे ड्रॉ की हुई है दैट इज कॉल्ड BMO, क्योंकि वो लोअर एनर्जी पे होगी, ज्यादा स्टेबल होगी. तो यहाँ पे एंड दिस इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज ABMO. दिस इज BMO, दिस इज ABMO. अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, सबसे पहले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, सिग्मा 1s में. नो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन सिग्मा स्टार 1s. वाई, जस्ट बिकॉज हमने अभी वो सीक्वेंस पढ़ा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. एंड अगर लिथियम से नाइट्रोजन तक जा रहे हैं तो पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py पहले, देन सिग्मा 2pz आएगा. तो फॉर हाइड्रोजन ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा, बस सिंपल इतना छोटा सा डायग्राम ड्रॉ होगा. So this is your MO diagram for hydrogen. अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं डायग्राम्स लिथियम से लेके फ्लोरीन तक के. सो MO डायग्राम स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहले हमने जो 2 सीक्वेंस पढ़ाई वो सीक्वेंस अच्छे से याद कर लीजिएगा. Without knowing the sequence this we cannot start the MO diagram. तो अच्छे से ये सीक्वेंस याद कर लोगे, so we'll start MO diagram. So next session start करते हैं lithium MO diagram से. This is all about your today's session. Thank you.